Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying the English class on this digital platform. I welcome you in today's class on this digital platform of learning. Okay. So, my dear students, you must be aware of the lesson we were doing. We were doing lesson 3, first section. This first flight. The main title of the story is two stories about flying, and the first section is his first flight. So, as I have already told you, there are two stories in this lesson. So, we are just going through the first story, his first flight. Okay. So, my dear students, till this slide we had done in the last class. So, I will continue from the next paragraph. But before that, I want to tell you that the young seagull was just pretending to sleep. The young seagull was hiding his head in his feathers, and it was bending down and standing on one leg so that his parents could see him that he is sleeping, he is in sleeping mood, and he can fall at any time. So he was just pretending to fall asleep, okay, so that his parents might be aware that he may fall, okay. So he was just pretending, he was acting like that to fall asleep. But his parents never paid heed to him, because his parents knew very well that he was acting, okay. So his father was busy in preening the feathers on his brother's back, but only his mother was paying attention to the young seagull, okay. And what happened? At her feet lay a piece of fish, okay, which she was tearing it up. Who? The young seagull's mother, okay. She was looking at the young seagull and tearing the flesh of fish so that the young seagull may be maddened with hunger and he would try to fly up, okay. That's why to just make him actually she wanted to attract her son, the young seagull, towards her so that he may fly, okay. So what happened after that? Let's see. Ga ga ga. He cried, begging her to bring him some food. So what happened? The seagull's mother, she was not willing to give him the piece of fish. So his mother, the young seagull, he shouted, ga ga ga. That is the voice of seagull, okay. And he was begging by telling ga 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 to bring him some food, to bring him the piece of fish. Gao kol a. See the word is Gao kol a. She screamed back derisively. Okay.
the young seagull's mother, she said, "Thou call art." Her voice was different than her son. Why? Because she wanted to say derisively. Derisively means in a manner showing someone that she is stupid. Okay? या ऐसे तरीका से उसकी माँ पेश आ रही थी, यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कितना बेवकूफ है। कौन? Seagull. The young seagull is so foolish. He cannot fly and dive at the piece of meat, the piece of fish. His mother was holding it. Okay? मतलब कि उसकी माँ ने जो अपने चोंच में या पैरों से जो मछली के टुकड़े दबा दबा कर बार बार छीन रही थी और मुंह में डाल रही थी खाने के लिए, तो वो चाहती थी कि ये झपटे। कौन? द यंग सीगल। लेकिन यंग सीगल जो है ये बिल्कुल स्टूपिड था, बेवकूफ था, इसीलिए झपट नहीं पाया और ये जोर जोर से चिल्ला रही थी उसकी माँ। डेरिसिवली का मतलब होता है ये मान लेना कि वो बेवकूफ है, कोई बेवकूफ है जो सामने वाला है। But he kept calling plaintively. Plaintively का मतलब होता है sadly. He started shouting. The young seagull. He started shouting plaintively. Plaintively means sad. Okay, sadly. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. और 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा होगा मान लो, वो खुशी से चिल्लाया। कौन? यंग सीगल। यंग सीगल खुशी से चिल्लाया, उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। ओके? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. Oh, इसलिए आखिर वो क्यों इतना खुश हो गया है अचानक ये सीगल और अपना एक्टिंग करना बंद कर दिया जिस प्रकार एक्टिंग कर रहा था, और इसलिए खुश हो गया, देखा कि उसकी माँ वो एक मछली का टुकड़ा लिए वो उड़ रही है उसके तरफ, वो उड़ते हुए आ रही थी किसके तरफ? यंग सीगल के तरफ। ओके? और उसके बाद क्या होता है? He leaned out. वो और आगे चलकर झुका, जो लेज था ना, लेज का आखिरी छोर पर आकर झुका। उत्सुकता से उसकी माँ उसके लिए एक टुकड़ा मछली का लेकर आ रही है, मछली का एक टुकड़ा लेकर आ रही है। ठीक है? तो मन में उसकी खुशी की लहर दौड़ गई और सोचता क्या मेरा भूख प्यास सब मिट जाएगा। ओके? इसीलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेज पर कि उत्सुकता से कि अब मुझे भोजन मिल जाएगा और ये झपट कर अपनी माँ से ले लेगा, उसकी माँ जैसे उसके नजदीक आएगी। सो ही लेंड आउट। Before I move forward, I want to show you the picture. See, ये यंग सीगुल है, छोटा सा सीगुल है, ये उसकी माता है, ये उसके भाई बहन और पिता है, एक बहन 2 भाई है। ठीक है? तो ये यंग सीगुल है, उसकी माता है, तो उसके नजदीक हो जाती है। देखो पूरी तरह से एकदम नजदीक जाती है, वहाँ इतना डिस्टेंस पर रहती है, ये इतना आ जाता तो मुंह से छीन लेता है झपटता, लेकिन थोड़ा सा दूरी मेंटेन करती कि वो झपटे। ओके? उसकी माँ चाहती है यंग सीगल की कि वो झपटे। ओके? तो यंग सीगल है और उसकी माता है। कभी बुल निकल जाएगा मुझसे, लेकिन सीगल याद रखना, सीगल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Eagerly tapping the rock with his feet. तो हम लोगों ने क्या देखा? He leaned out eagerly, उत्सुकता से आगे जाकर झुकता है। कहाँ? लेज का एंड पर। ओके? लेज के एंड पर जाकर झुकता है आगे जाकर। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और जो रॉक, जिस रॉक पर वो खड़ा रहता है उसको टैप कर, उसको ऐसा करके ठोकता है, पटकता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से ऐसे थपथपाता है। ठीक है? ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश करता है उसके नजदीक आने का, और आते आते छोड़ के आ जाता है। ठीक है? ब्रिंक, he comes to the brink of the ledge,
as she flew across, जैसे वो उसके तरफ दौड़ भागी उड़ी। कौन? उसकी माता। उसकी माता यंग सीगल की। यंग सीगल की माँ जैसे उसकी तरफ उड़ कर गई वैसे ही वो आगे बढ़ता है। उत्सुकता के साथ उसको मछली खाने का बेचैन, मछली खाने के लिए बेचैन हो जाता है यंग सीगल। ओके, भूख से व्याकुल हो गया रहता है, पागल हो गया रहता है, तिलमिला रहा था भूख से। But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जैसे उसकी माता उसके सामने आई, जस्ट उसके सामने, अपोजिट ये कहा जाता है, मेरे सामने तुम लोग हो, you are opposite to me. You all are sitting opposite to me. तो जैसे अपोजिट सामने आई, अपोजिट मतलब सामने आई, ठीक है? She halted, वो रुक गई, थोड़ी दूरी पर रुक गई, इतनी दूरी पर, ठीक है? Wings, her wings, motionless, उसके जो डैने थे, उसके जो पंख थे, वो और फड़फड़ा नहीं रहे थे, पंख को शांत कर ली थी उसकी माता ने, हवा में शांत करके खड़ी थी, समझ लो हवा में, कि वो आकर अटैक करे झपटे मछली की टुकड़ी को। The piece of fish in her beak, almost within reach of his beak, और ये जो टुकड़ा जो था मछली का उसके चोंच में, उस सीगल के माँ, यंग सीगल के माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, बस उससे तक पहुंचने ही वाला था, उसने एकदम नजदीक नहीं था। पहले इतना दूर रखी, धीरे धीरे फिर नजदीक लाई तो झपटे, वो नजदीक लेकर आई कि झपटे। इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखो नजदीक लेकर गई कि वो झपटे। ओके, ऑलमोस्ट विद द रीच ऑफ हिज बीक, इसीलिए कहा गया बिल्कुल उसके समीप, उसके पहुंच के नजदीक। किसके पहुंचे? यंग सीगल के पहुंच के नजदीक। He waited a moment in surprise, चौंकते हुए थोड़ा देर रुका, मैं इंतजार किया, चौंक गया कि उसकी माँ आखिर क्यों नहीं आ रही है पास में, एकदम पास क्यों नहीं आ रही है। Wondering why she did not come nearer, और यह सोच रहा था, सोच के घबरा रहा था यंग सीगल कि आखिर उसकी माँ उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। तो he was just very surprised, okay, and then maddened by hunger, उसके बाद क्या हुआ, एकदम भूख से व्याकुल हो गया था यंग सीगल, पागल सा हो गया था, ठीक है, एकदम पागल सा हो गया था, बौखला रहा था भूख से, ठीक है। किसी को भूख लगता है तो कैसा बौखलाहट होती है, भूख जैसी बौखलाहट सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी सहन करना पड़ता है और भूख को भी भूलना पड़ता है। लेकिन यहाँ भूलने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह सीगल जो है 24 घंटा से कुछ नहीं खाया था, 24 आवर्स हो गए थे, उसके पेट में कोई दाने गए होंगे। ओके, सो ही वाज मैडेड बाय हंगर, ही डाइव्ड एट द फिश, तो कूद पड़ा उस मछली के टुकड़े पर, झपट पड़ा, डाइव्ड एट द फिश मतलब वो झपट पड़ा। With a loud scream, he fell outwards and downwards, और जोर से चिल्लाने लगा, हाँ चिल्लाते हुए और झपटा। He fell outwards, तो अपना होश को बैठा, हाँ, और downwards नीचे भी गया, कभी कभी ऊपर नीचे भी आ जा रहा था, क्योंकि बैलेंस, he could not balance, ओके, उसे नहीं विश्वास हो पा रहा था कि वो उड़ रहा है, कौन, यंग सीगल, into space, तो पहले आउटवर्ड ऊपर जाता है, फिर नीचे चले आया, ठीक है। Then a monstrous terror seized him, और तब उसे बहुत ही भयानक डर लगा, खतरनाक डर लगा। Monstrous मीन्स खतरनाक, terror का मतलब डर, डर उस पर कब्जा कर लिया, भयानक डर समा गया उसके अंदर अचानक। क्यों? तो अचानक अपने आप को पाया स्पेस में, जब अपने आप को स्पेस में पाया तो सोचा मैं कहाँ हूँ, तो गिर जाऊंगा, ऐसा लगा, ठीक है। Monstrous terror seized him and his heart stood still, उसका हार्ट बीट एकदम रुक गया, दिल का धड़कन रुक गया। किसका? उस यंग सीगल का। He could hear nothing, वो अब कुछ नहीं सुन पा रहा था, कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी।
but it only lasted a minute. सिर्फ 1 मिनट तक उसका डर रहा। यहाँ लिखा है ना monstrous terror, ये खतरनाक डर जो है, ये भयानक डर थोड़ी देर के लिए उसके पास था, 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर 1 मिनट के लिए वो डरा, उसका बाद उसको होश में आ गया। He became conscious that he is able to fly. Okay. The next moment he felt his wings spread outwards. और अगले पल वो उसने सोचा कि उसके विंग्स स्प्रेड हो गए हैं, उसके डैने फैल गए हैं, अपने डैने को उसने फैला लिया है उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए, अपने पहली उड़ान भरने के लिए। ठीक है, इसीलिए हिज फर्स्ट फ्लाइट इस शीर्षक का नाम है, इस मिशन का शीर्षक है। तो उसे उस समय पता चल गया कि अपने विंग्स को फैला चुका है उड़ने के लिए, उसे विश्वास नहीं हो रही थी उसे अपने ऊपर। The wind rushed against his breast, और उसकी छाती पर विंड्स को फील कर पा रहा था, जैसे हवा को काटते हुए उड़ रहा था, अपने डैने से ऐसे उड़ रहा था जिस प्रकार जटायु उड़ रहे थे। जैसे उड़ रहा था, हवा भी कट रहे थे, हवा को फील कर पा रहा था अपने छाती के ऊपर, ब्रेस्ट फेदर्स, फेदर्स के ब्रेस्ट फेदर्स, छाती वाले फेदर्स के ऊपर, और अपने उस हवा को फील कर पा रहा था। देन अंडर हिज स्टमक, उसके बाद अपने पेट के नीचे भी फील कर पा रहा था हवा के झोंकों को। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने पंख के सामने भी हवा फील कर रहा था, पंख भी उसके हवा महसूस कर पा रहे थे। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और उसे महसूस होने लगा उसके जो विंग्स थे, उसके जो डैने थे, किस प्रकार हवा को काट कर उसके उड़ने में मदद कर रहे हैं, हवा को काटते हुए उड़ने की मदद कर रहे हैं। वो उसे महसूस होने लगा, उसका आभास होने लगा। He realized that thing, okay, and he then realized that he could fly. He was not falling headlong now. He was not falling headlong now. अब आगे और headlong now मतलब आगे और गिरने का जैसा नहीं हो रहा था, ऐसा उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि अब वो गिर जाएगा। ओके, the last slide. No, still there. It's not finished. He was no longer afraid. He was no longer afraid. अब उसका सारा डर खत्म हो गया था। अब पहले जैसे सहमे हुए रहता था, डरे हुए रहता था, उड़ने से डरता था, सारा डर उसके खत्म हो गए थे। He just felt a bit dizzy. Dizzy का मतलब चक्कर आना। See, dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. हाँ, पहली बार उसको उड़ान भरी थी तो उसे थोड़ा बहुत चक्कर आ रहे थे, सर चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था उसे सर घूम रहे हैं, उसी को बोला जाता है dizziness. Okay, he was feeling a bit dizzy. Then he flashed his wings once and he soared upwards. और फिर उसने अपने डैने को ऊपर किया, खोला और फैलाया और ऊपर की तरफ उड़ा। कौन? The young seagull. Okay, and he soared upwards, और ऊपर तक की तरफ हो गया। Soared upwards means he went upwards. Okay, ga 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 ga, thou for up. His mother shook past him. तो जैसे ऊपर गया उसकी माँ भी खुशी से चित्कार करना शुरू कर दी। यंग सीगल की माँ भी खुशी से चित्कार करना शुरू कर दी, चिल्लाना शुरू कर दी। गा 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 गाओ कॉल आ, ऐसा करके इस आवाज में वो चित्कार करना शुरू कर दी। वो भी लोग सीगल्स ऐसे ही कुछ आवाज करते होंगे। His mother soon passed him. उसकी माँ उसके तरफ उड़ते हुए आई। ओके, her wings making a loud noise, और उसकी माँ का जो विंग्स काफी तेजी से घूम रही थी अपने बेटे के तरफ, यंग सीगल की तरफ, और
वो पूरा तेज आवाज, खुशी की आवाज कर रही थी। इसमें सबसे छोटा लड़का उड़ना शुरू कर दिया है, उसकी खुशी की आवाज से तो जोर जोर से स्क्रीमिंग, she started screaming, okay, seeing his son flying in the air. He answered her with another scream. और फिर ये फिर एक बार चिल्लाया, ठीक है। फिर ये जो यंग सीगल है फिर उसके माँ को देखकर चिल्लाया। Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता उधर आए और उसके ऊपर उड़ने लगे, झूमने लगे, चिल्लाते हुए, खुशी की लहर में चिल्ला रहे थे, खुशी के बोल थे। ओके, He saw his two brothers and his sisters flying around him. और इस यंग सीगल ने देखा इसके दो भाई और एक बहन उसके पास उड़ रहे हैं, उसके पास मंडरा रहे हैं। They were flying around him. उसके तरफ घूम घूम कर उड़ रहे थे, उसके दो भाई और एक बहन, ठीक है। उसको चारों तरफ से उसके तरफ घूम रहे थे, वो लोग उड़ रहे थे। Carpeting and banking and soaring and diving, वो लोग क्या कर रहे थे? Living like a horse, horse के जैसे उछल रहे थे, उड़ रहे थे, कूद कूद कर, horse के जैसे कूद कर उड़ रहे थे। Carpeting and banking, banking means flying with one wing higher than the other, एक विंग को ऐसा करके उड़ना, एक को नीचे करके उड़ना, इसी को बोला जाता है बैंकिंग। This type of flying is called banking. हाँ, पक्षी अगर ऐसा बराबर हुआ है, अगर एक ऊपर कर दिया, एक नीचे कर दिया, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग। So they were curveting and banking. His parents were curveting and banking and flying around him. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और तब वो पूरी तरह से भूल गया that he had not always been able to fly. वो भूल गया पहले का बात, पहले वो पूरी तरह से बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा था यंग सीगल, लेकिन उस बात को भूल गया कि वो कभी वो सोचने लगा कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं उड़ नहीं सकता था। वो दिमाग से उसे निकल गया कि कभी वो डरता था उड़ने को, उड़ने से डरता था, ये बात को बिल्कुल पूरे तरह से भूल गया। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking freely. और क्या हुआ? जोर जोर से चित्कार करके अपना उड़ान को जारी रखा, ठीक है, जोर जोर से चिल्लाते हुए, डाइव करते हुए, सोरिंग करते हुए, कर्विंग, श्रीकिंग, कर्व, श्रीकिंग, श्रीली, ठीक है, कभी इधर मुड़ता कभी उधर मुड़ता, अपने आप को ऐसा उड़ाने लगा। कौन? यंग सीगल। ओके, he was near the sea now, flying straight over it, racing straight out over the ocean. अब वह समुद्र के पास था, अब वह समुद्र के पास था। ओके, he was flying near the sea now, सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, flying straight, सीधा उड़ रहा था उसके ऊपर, facing straight, सीधा समुद्र की तरफ फेस कर रहा था, अपने चेहरे को समुद्र की तरफ टिकाए हुए था। ओके, स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, वो जो पूरा सागर था, ये जो सागर था, महासागर, उसके तरफ देखकर उसके ऑपोजिट में वो उड़ रहा था, उसे डर नहीं लग रही थी। He saw a vast green sea beneath him. क्या देखा? वो देखा कि उसके नीचे एक विशाल सा समुद्र है। क्या देखा है? इस यंग सीगल ने कि वो उड़ रहा है और उसके नीचे एक विशाल क्या है? समुद्र है। वास्ट विशाल, with little regions moving over it, और region with बीच में region भी आ रहे थे, and he turned his beak sideways and cowed everybody, और अपने beak को कभी इधर से मोड़ता, कभी अपनी इधर मोड़ता, कभी ऐसा रखता, कभी ऐसा रखता, कभी ऐसा रखता, और उड़ता जाता एकदम immediately, मतलब खुशी से, हाँ, वो खुशी से वो फुलाना सब आया था। कौन? यंग सीगल। इतना खुश था वो कि कोई उसने पहली उड़ान भरी थी, और खुशी से वो एकदम ऐसा उड़ान भरा कि अब वो उसको फिर नेवर लुक्ड बैक, फिर पीछे मुड़कर वो कभी देखा नहीं, अपनी हार नहीं मानी, वो बिल्कुल यह बात को भूल गया कि कभी ऐसा भी था कि उड़ नहीं पा रहा था। उस बात को वो
वो अपने दिमाग से वो निकाल लिया. The young seagull, he just forgot about that. That there was time when he could not fly, and now all that fear was gone, and now he was immediately flying in the air. So my dear students, that's all for today's lesson. Okay? So get ready for doubt classes.